Dear students, welcome to again video lecture series on surveying. Now today we will go for lecture 4 from unit number 4, and that is on local attraction. In previous lecture we have seen that the important concept of magnetic declination. So whenever there is a variation in the true meridian and the magnetic meridian, the magnetic declination occurs. चुंबकीय झुकाव, इस टॉपिक को हमने पिछले लेसन में देखा. हमारी जो मैग्नेटिक नीडल है ये हमेशा हमें हमारा ट्रू नॉर्थ साउथ पोल की जो ट्रू मेरिडियन है, हमारा जियोग्राफिक ट्रू मेरिडियन, ट्रू नॉर्थ, उसको इंडिकेट नहीं करती है. सो देयरफॉर देयर इज डिफरेंस बिटवीन द ट्रू बेरिंग एंड द मैग्नेटिक बेरिंग. So that difference is called as magnetic declination, and this occurs due to the presence of the magnetic field around the earth globe. So हमने देखा है कि अर्थ का जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन अराउंड द अर्थ हमेशा चेंज होती रहती है, एंड बिकॉज ऑफ द सेक्युलर वेरिएशन ओवर द 100 ईयर द ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ पोल it behaves like the pendulum. So there is a variation in the magnetic field direction, and because of that variation the true bearing and magnetic bearing deflects. So that is one of the reasons, secular variation. Then it is also occurring over the year also. Because of the rotation of the earth around the sun, the north south pole of the earth deflects towards the sun and it acts again as a pendulum. So therefore again the magnetic meridian and the true meridian again changes, and that is because of the annular variation. There is 1 minute to 3 minute declination is there. Similarly it may be on the daily basis, because the earth is rotating around its own axis, so its own axis does not remain at the exact location, but it also behaves like a pendulum, and therefore because of that also the true north south pole and the magnetic needle direction that gets changed. So there is again deflection, and that is called as diurnal variation. So because of this variation or because of the some natural phenomenon, the magnetic declination occurs on the earth, and we have seen that by using the formula true bearing is equal to magnetic bearing plus minus declination. यदि चुंबकीय सुई का झुकाव हमारा ईस्ट की तरफ होता है तो हमको उसकी वैल्यू पॉजिटिव माननी पड़ती है, और यदि चुंबकीय सुई का झुकाव हमारा पश्चिम की तरफ होता है, वेस्ट की तरफ होता है, तो उसको हमको निगेटिव मानना पड़ेगा. सो डिपेंडिंग अपॉन द डिक्लिनेशन इज टुवर्ड्स ईस्ट और टुवर्ड्स वेस्ट, वी कैन डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. सो प्लस और माइनस वैल्यू वी कैन टेक, एंड बाय यूजिंग द फार्मूला ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू magnetic bearing plus minus declination, we can calculate the magnetic bearing or true bearing or the declination, whatever it is. So that we have seen in the last lesson, and we have solved some of the problem. Now there is again one interesting phenomenon which occurs when we use the compass for measuring the direction of the survey line. जब हम सर्वे लाइन का विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन एंगल गिनने के लिए जब प्रिज्मेटिक कंपास का इस्तेमाल करते हैं तो और एक फिनोमिना होता है वहां पे. दैट फिनोमिना वी विल अंडरस्टैंड नाउ, एंड दैट इज रिगार्डिंग द लोकल अट्रैक्शन. सो इन दिस लेसन वी विल टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ बेरिंग, then concept of the local attraction, and then we will solve the problem on the local attraction. So we will proceed here. Now all this exercise, why it is necessary, magnetic declination या फिर local attraction, ये हमको क्यों consider करना चाहिए, that we have to first understand, and for that now we will consider the chain and compass survey. अब मुझे चेन और कंपास का सर्वे करना है और किसी एक एरिया का मुझे मैप निकालना है. So in that map what I will do, so you can observe here that this is my one of the station A, और ये यहाँ पर अलग अलग बिल्डिंग और एक कैंपस है हमारा, उसका हमको नक्शा बनाना है. तो हम क्या करेंगे, ये कंपास की जो कैंपस की जो बाउंड्री है उसके ऊपर ऐसे स्टेशन पॉइंट लेंगे. सो मैं एक पॉइंट यहाँ लिया मैंने, फिर दूसरा बी पॉइंट लिया, तो एक ए बी ये मेरी एक सर्वे लाइन हो गई. फिर दूसरा पॉइंट यहाँ लिया मैंने सी, सो बी सी इज माई अनदर सर्वे लाइन. फिर डी पॉइंट लिया मैंने, सो सी डी इज माई अनदर सर्वे लाइन. देन आई हैव टेकन ई पॉइंट, सो देन डी इज माई अनदर सर्वे लाइन. देन last point again I have joined, so EA is my survey line.
तो एक एरिया का नक्शा बनाने के लिए मैंने ए बी सी डी ई ऐसे अलग अलग स्टेशन डिसाइड कर लिए. सो दिस इज वन ऑफ द क्लोज ट्रैवर्स. दिस इज कॉल्ड एज क्लोज ट्रैवर्स और क्लोज बाउंड्री. सो नेम ऑफ दिस क्लोज ट्रैवर्स इज ए बी सी डी ई एंड ए. ये हमारा एक क्लोज ट्रैवर्स हो गया. अब ये क्लोज ट्रैवर्स का ऑब्जर्वेशन फील्ड में ले सकते हैं हम लोग. सो बाय यूजिंग द सर्वे प्रिंसिपल व्हाट वी विल डू, वी विल बाइफरकेट इनटू नंबर ऑफ ट्रायंगल्स. तो मैंने यहां से यहां तक ये पूरी एक मेन सर्वे लाइन ले ली, लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन. सो ए बी इज माई सर्वे लाइन. देन बाय ज्वाइनिंग दी स्टेशन बी एंड सी मैंने और एक दो सर्वे लाइन ले ली यहां पर अलग से. अब ये एक एंगल है, मेरा सबसे बड़ा एंगल है, तो ये एंगल में वेरिएशन नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिए 30-30 मीटर पे, सी और डी, और इनको ज्वाइन करके एक लाइन ले लिया और दिस इज कॉल्ड एज चेक लाइन. तो यहाँ से 30 मीटर पे सी लिया, 30 मीटर पे डी लिया और एक लाइन ज्वाइनिंग कर दी. सो दिस इज, ये सारा मुझे पेक ठोक के रेंजिंग रॉड लगा के मुझे करना है. तो ये सर्वे लाइन तो मैं डिसाइड कर दूंगा. अब हर सर्वे लाइन के अंदर मुझे, यहाँ बिल्डिंग है तो ये बिल्डिंग के ऑफसेट लेने पड़ेंगे मुझे सर्वे लाइन तक, या जो भी ट्री है तो ट्री का ऑफसेट मुझे लेना पड़ेगा. तो जो भी फीचर्स है अंदर के, उस फीचर्स को मैं ऑफसेट और चेनेज के जरिए मैं लोकेट कर सकता हूँ. तो फील्ड वर्क तो मुझे क्या क्या है, फील्ड वर्क तो मुझे ए बी लाइन की लंबाई गिनना है. सो आई विल मेजर द डिस्टेंस बाय यूजिंग द टेप आर चेन. सो दैट इज डन. सो यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एंड ई ए. So that you are taken observation. अब ये डिस्टेंस सिर्फ लेने से आप उसका ड्राइंग के ऊपर प्लॉट नहीं कर सकते. क्यों? कि आपको ये इतना इंक्लूडेड एंगल कितना है, ये एंगल आपको मालूम नहीं है. हियर दिस एंगल इज ऑल्सो यू डोंट नो. तो फिर हम लोग ये ए बी बनाने के बाद में इधर कितनी लाइन एंगल से ए लाइन बनाएंगे. सो आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस एंगल. अब ये एंगल निकालने के लिए फिर मेरे पास में क्या तरीका है. सो व्हाट आई विल डू, मैं ए बी पे कंपास रखूंगा और ए बी का बेयरिंग गिन लूंगा यहाँ पे. सो थीटा दैट विल आई विल ऑब्जर्व बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी. जैसा मैं बी पे जाऊंगा तो मैं यहाँ पर भी मैं कंपास रखूंगा और कंपास रख के नॉर्थ के साथ में बी सी, इसका भी मैं एंगल गिन लूंगा, थीटा बी सी. यहाँ पे ए बी हो गया. फिर मैं कंपास रखूंगा सी पे और यहाँ पर मैं नॉर्थ के साथ में ये आगे के लाइन का भी एंगल गिनूंगा. सो आई विल मेजर द एंगल ऑफ सी डी. सो दिस इज थीटा सी डी. देन आई विल प्लेस द कंपास एट डी पॉइंट एंड विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ आई विल मेजर द लाइन डायरेक्शन ऑफ दिस एंगल. तो ये डी ई, ये निकालेंगे हम लोग थीटा डी ई. सिमिलरली आई विल प्लेस द कंपास एट ई एंड विथ नॉर्थ आई विल मेजर द दिस एंगल. सो आई विल गेट थीटा ई ए. ये लाइन का थीटा मिलेगा. तो ऐसा हर एक स्टेशन पे मैं कंपास को रख के हर एक सर्वे लाइन का मैं बेयरिंग गिन सकता हूं. सो आई हैव मेजर्ड द बेयरिंग. सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव मेजर्ड, वी हैव मेजर्ड लेंथ एंड सेकंड वी हैव मेजर्ड बेयरिंग. बट व्हाइल मेजरिंग द बेयरिंग, अब ये दोनों डाटा यदि हम लोग लेते हैं लेंथ और बेयरिंग, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कागज के ऊपर ड्राइंग शीट के ऊपर एक पॉइंट लूंगा और यहाँ से थीटा का एंगल लूंगा और ये तिरछी लाइन ऐसी बनाऊंगा, ए बी मेरी बन जाएंगी. अब ए बी बनने के बाद में उसकी लंबाई कितनी है वो मार्क कर दूंगा तो मुझे बी पॉइंट मिल जाएगा. फिर बी पॉइंट पे मैं फिर से ए नॉर्थ डायरेक्शन वर्टिकल है तो यहाँ पर भी वर्टिकल लाइन बनाऊंगा और वर्टिकल लाइन बना के बी पॉइंट से मैं ये वाला एंगल बनाऊंगा फिर थीटा, और फिर मुझे बी सी लाइन मिल जाएगी. बी सी लाइन बनाने के बाद में फिर ये सी पॉइंट मुझे मिल जाएगा जितना मैं बी सी का मैं मार्क करता हूँ डिस्टेंस. सो आई विल मार्क द डिस्टेंस. तो सी लाइन मिलने के बाद में फिर मुझे यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन बनाना है, फिर ये एंगल मेजर करना है तो मुझे ये लाइन मिल जाएगी. फिर ये लाइन के ऊपर सी डी डिस्टेंस मार्क कर दिया तो डी पॉइंट मिल जाएगा. फिर डी पॉइंट में नॉर्थ डायरेक्शन बनाना है मुझे वर्टिकल. फिर यहाँ से ये एंगल लेना है तो मैं डी ई लाइन बना सकता हूँ. फिर डी लाइन पे डी ई का डिस्टेंस मार्क किया तो मुझे ई पॉइंट मिलेगा. फिर ई पे मैं नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करूँगा ऊपर और यहाँ से ये एंगल लूँगा तो मुझे ई ए लाइन मिलेगी. तो ये मैं ऐसा कर सकता हूँ, तब जाके मुझे ये बाउंड्री जो है बाहर की मिल जाएगी.
बट इन एक्चुअल फील्ड हमने बेयरिंग ले लिए, यदि इन बेयरिंग में यदि गलती आ गई तो आपकी ये डायग्राम बराबर नहीं बनेंगी। सो व्हाई इट हैपन्स, तो अभी हमारा यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मैं यदि ऐसा ए बी से देखिए ए बनाया, फिर यहाँ से दूसरी लाइन बनाया, फिर यहाँ से तीसरी लाइन बनाया, फिर यहाँ से चौथी लाइन बनाया, और फिर यहाँ से पांचवी लाइन बनाया, तो ये आखिरी की लाइन मुझे ये ए स्टेशन से शुरू होने के बाद में आखिरी का पॉइंट मुझे ए पे नहीं पहुंचेगा। इसका कारण क्या है कि ये लंबाई गिनने में मेरी गलती हो गई ए बी में, तो ये पॉइंट थोड़ा सरक गया। फिर बी सी में यदि गलती होंगी तो बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ और मेजरमेंट ऑफ द बेयरिंग। तो ऑब्जर्वेशन में गलती यदि हो गई तो आपका ये जो डायग्राम है ये बराबर बनेगा नहीं, तो आखिरी में आपकी गैप अधूरी रह जाएंगी इतनी यहाँ पे, दिस गैप। सो ये जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं क्लोजिंग एरर। तो किसी भी ऐसा सर्वे का डायग्राम बनाने के लिए हमारे लेंथ के अंदर एरर होंगी या फिर हमारे एंगल के अंदर एरर होंगी, तो हमारा ड्राइंग निकालते समय गलती हो सकती है और ये ट्रैवर्स जैसा का वैसा निकलेगा नहीं, यहाँ पर एरर आ जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि लेंथ के अंदर करेक्शन निकालने का हमने तो देख लिया पहले यूनिट में, हाउ वी कैन मेक द करेक्शन इन द लेंथ। अब बेयरिंग में भी करेक्शन करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि बेयरिंग भी आपका गलत हो सकता है मेजर करते समय। सो बिकॉज ऑफ दैट, तो यदि आपके बेयरिंग में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है तो भी आपको करेक्शन करना पड़ेगा, या फिर लोकल अट्रैक्शन है तो भी करेक्शन करना पड़ेगा। इसका मतलब जो आप फील्ड में बेयरिंग ले रहे हैं उसको चेक करना जरूरी है कि वो बराबर है कि नहीं है। अब बराबर है कि नहीं ये चेक करने का तरीका क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मैंने समझ लो यहां पर ये जो मेरा डायग्राम है ये बनाने की जगह मैंने व्हाट आई हैव डन, मैंने यहाँ से एक लाइन बनाया। सो दिस इज सपोज ए और यहाँ पे दूसरी लाइन बनाया बी। तो ए बी ये मेरी सर्वे लाइन हो गई और ये मेरा हो गया नॉर्थ। तो मैंने ए से बी के तरफ ये लाइन का एंगल गिन लिया यहाँ पर, ये वाला एंगल। तो ये जो एंगल है नॉर्थ के साथ में, ये एंगल हो गया मेरा फोर बेयरिंग ऑफ ए बी। मैं ए बी यानी ये सर्वे लाइन का नॉर्थ के साथ में एंगल गिन सकता हूं। सो दिस एंगल इज कॉल्ड एज फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं कंपास ए से बी पे रखूंगा तो बी पे रखते समय मैं क्या करूंगा, बी पे कंपास रख के ए के तरफ देखूंगा। तो ऐसा करने से मुझे नॉर्थ के साथ में इतना बड़ा एंगल मिलेगा। सो आई विल गेट दिस एंगल। तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये एंगल हो गया ए से बी की तरफ देखने के बाद में, तो वो हो गया फोर बेयरिंग। वैसा मैंने लाइन वही है हमारी ए बी, लेकिन बी से ए को देखा तो जो एंगल मिलेगा नॉर्थ डायरेक्शन के साथ में, ये एंगल हो जाएगा बैक बेयरिंग ऑफ ए बी। यानी एक लाइन के दो बेयरिंग हम गिन सकते। ए से बी को देखा तो फोर बेयरिंग, और वही लाइन के लिए बी पे जाके ए को देखा तो बैक बेयरिंग। सो व्हाट हैपन, जब मैं इधर से इधर देख रहा हूं तो जो एंगल है मेरा, तो मैं उसको इधर से इधर देखूंगा तो एंगल मेरा 180 से चेंज हो जाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट फॉर ए सिंगल लाइन यू हैव टू टेक द ऑब्जर्वेशन ऑफ फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग। आपको दोनों भी ऑब्जर्वेशन लेने चाहिए। एंड यू शुड नो दैट कि दोनों भी इसका डिफरेंस कितना रहेगा, 180 डिग्री का। सो डिफरेंस बिटवीन फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो ये आना ही चाहिए। यदि ये नहीं आता है तो हमको करेक्शन करने पड़ेंगे ऑब्जर्वेशन के अंदर। तो जब भी हम लोग किसी प्रकार का सर्वे कर रहे हैं ऐसा ट्रैवर्स का, तो लाइन की लंबाई और बेयरिंग गिन रहे, तो लेंथ में भी करेक्शन करना पड़ेगा और बेयरिंग में भी करेक्शन करना पड़ेगा। तो बेयरिंग में करेक्शन क्यों करना पड़ेगा, तो एक तो रीजन हमने देख लिया कि देयर में बी चांस दैट मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में बी देयर, सो दैट वी नो, सो वी कैन अप्लाई दैट करेक्शन। अब दूसरा करेक्शन आ सकता है, एंड दैट करेक्शन इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन। सो डिफरेंस बिटवीन फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग इज नॉट 180 डिग्री, 180 डिग्री नहीं रहता है वो। इसका मतलब दोनों में से कोई तो भी एक बेयरिंग आपका गलत है या कुछ तो भी प्रॉब्लम है।
तो इस प्रकार से यदि हर लाइन के लिए फोर बेरिंग बैक बेरिंग गिनने के बाद में आपको पता चलेगा कि कौन से लाइन का बेरिंग में करेक्शन करना पड़ता, और वो करेक्शन यदि नहीं करेंगे तो आपका जो ट्रैवर्स है ये ट्रैवर्स आपका क्लोज नहीं होगा. सो टू करेक्टली प्लॉट दिस ट्रैवर्स and this map on the drawing sheet, you need the correct length and correct bearing. So we have to apply the correction to the bearing. But while observing the bearing, there are chances of error. तो हमको वो एरर एलिमिनेट करने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हर एक लाइन का फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 होना चाहिए. एंड हाउ दिस कैन बी डन, दैट वी विल लर्न इन टू दिस लेसन. सो हियर we have to first understand how this corrected bearing observation is made. So that famous method is local attraction method. यानी क्या है जो मैंने आपको बताया, in this method the error due to local attraction at each of the affected station is found starting from the bearing of unaffected local attraction and the bearing of successive line is adjusted. तो कौन से स्टेशन पे कौन से लाइन के लिए फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 नहीं है ये हमको पहले पता करना पड़ेगा. यदि ये पता चल गया तो फिर लोकल अट्रैक्शन कितना है वो निकालना पड़ेगा, और उसका करेक्शन हर एक लाइन में लगाते लगाते सारे लाइन के बेरिंग हमको करेक्ट करने पड़ेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमको लोकल अट्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा या लोकल अट्रैक्शन को पहले समझना पड़ेगा. सो फॉर दैट पर्पज नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लोकल अट्रैक्शन. सो sometimes the magnetic needle does not points towards the magnetic north or south. अभी देखो पहले तो ट्रू बेरिंग की बात कर रहे थे हम लोग, अब हम मैग्नेटिक नीडल जो है ये हमारी मैग्नेटिक नॉर्थ या साउथ को नहीं दिखाती है, बिकॉज ऑफ द रीजन बीइंग दैट द नीडल में बी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल अट्रैक्टिव फोर्सेस. तो जहां पे हमने स्टैंड के ऊपर कंपास रखा और वो कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाना चाहिए, उसने मैग्नेटिक नॉर्थ तो दिखाना ही है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाने के लिए भी वो मैग्नेटिक नीडल थोड़ी झुक जा रही है इधर. क्यों झुक जा रही है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल अट्रैक्टिव फोर्स. यदि वो प्रिज्मेटिक कंपास के आसपास में कोई चुंबकीय क्षेत्र है तो वो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक नीडल को अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी नीडल इधर या इधर किधर भी हो सकती है. आपने कंपास जहां रखा उसके इधर में चुंबकीय प्रवाह होगा तो इधर झुकेगी, इधर में होगा तो इधर झुकेगी. Because the presence of the magnetic substance or magnetic field around the vicinity of the compass. तो उसके वजह से जो हमारा इफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या है? The deflection of the needle from its original position because of the presence of some magnetic substance is known as local attraction. तो लोकल अट्रैक्शन ये एक फिनोमिना है, लोकल अट्रैक्शन ये एक प्रक्रिया है जो प्रक्रिया में किसी कंपास के आसपास में कोई मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक फील्ड के जैसा कोई पदार्थ है तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो उसके तरफ थोड़ी झुकती है. तो ये जो लोकल लोकेशन का जो झुकाव है, स्थानीय जगह के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के वजह से लोहचुंबक की सुई में जो झुकाव आता है, वो जो झुकाव आने का जो प्रक्रिया है, that phenomenon is called as local attraction. So always remember that local attraction is a phenomena. Local attraction is a phenomena. And to detect this local attraction at a particular place, हमने पहले भी देखा है कि फोर and back bearing of the each lines are taken. तो लोकल अट्रैक्शन है कि नहीं है ये पता करने के लिए हर एक लाइन का आपको लोकल फोर बेरिंग और बैक बेरिंग दोनों भी गिनना पड़ेगा. यदि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग गिनने के बाद में उसका डिफरेंस 180 आता है, इसका मतलब लोकल अट्रैक्शन नहीं है. और यदि डिफरेंस आता है तो फिर जितना डिफरेंस है उतना करेक्शन हमको करना पड़ेगा बेरिंग के अंदर. सो हियर यू हैव टू रिमेंबर दैट द डिफरेंस comes out to be 180, there is no local attraction, and on the other hand if the difference is other than 180 the bearing may be rechecked to find out the discrepancy. तो बेरिंग को आपको एक बार डबल से लेना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा और कौन सा बेरिंग करेक्ट है और कौन से बेरिंग में करेक्शन होना और कितना करेक्शन होना
वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर द लोकल अट्रैक्शन फिनोमिना इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी ऑब्जर्व द बेरिंग ऑफ द लाइन। सो वी कैन से दैट द डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस is known as local attraction. The disturbing influence of the magnetic substance is known as local attraction. यानी आसपास में कोई चुंबकीय प्रभाव वाला क्षेत्र या पदार्थ या कोई वस्तु या कोई प्रोसेस चल रही है, उसके वजह से कंपास की सुई उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ थोड़ी सी झुक सकती है। ये जो झुकने की प्रक्रिया है उसको हम लोग लोकल अट्रैक्शन कहते हैं। स्थानीय झुकाव, स्थानीय झुकाव। सो क्यों आएगा ये लोकल अट्रैक्शन? द लिस्ट ऑफ द मटेरियल विच कॉजेज द लोकल अट्रैक्शन आर, क्या क्या है? सो यदि मैग्नेटिक रॉक है आजू बाजू में कहीं पे, कोई लोहे का बड़ा बड़ा ऐसा ढेला पड़ा है, आयरन ओर कोई है वहां पर पड़ा हुआ, या स्टील स्ट्रक्चर है कोई, तो भी लोहे का शेड वगैरह है, टीन वगैरह एंगल वगैरह का, आयरन पोल्स, लोहे के रॉड, रेल्स वगैरह रखी हुई है। तो जो लोहा है वो लोहा स्टील का, वो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके वजह से उसके अंदर भी कुछ तो भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन रहता है, और उसके वजह से हमारी सुई उसके तरफ झुक सकती है। सो इलेक्ट्रिक पोल यदि है तो उसके ऊपर से इलेक्ट्रिक की हाई टेंशन वायर गई है तो वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक वायर्स या पोल्स होंगे लोहे के। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो लोकल अट्रैक्शन में आकर। देन की बंच, हमारे खीसे में जेब में यदि लोहे की चाबियां है तो वो भी हो सकता है वो माइन्यूटली करेंगे अट्रैक्ट, लेकिन उसके वजह से भी प्रभाव पड़ सकता है। चाकू, नाइफ, आयरन के बटन, लोहे के बटन यदि आपको शर्ट के पैंट को वगैरह है, या फिर स्टील क्योंकि कंपास की सुई मैग्नेटिक की है तो वो तो लोहे की तरफ तो अट्रैक्ट तो होने ही वाली है। सो स्टील रिम स्पेक्टेकल्स, लोहे की फ्रेम, सो इट मे बी देयर मे बी चांस। देन चेन, आपकी लोहे की चेन भी पड़ी होती है सर्वे करते समय, तो उसके वजह से भी कंपास के अंदर एरो, लोहे का एरो रहता है, हैमर भी लोहे की रहती है, क्लीनिंग एक्स, फावड़ा वगैरह रहता है हमारे पास, टिकास फावड़ा, तो वो भी लोहे का रहता है, ट्राई स्क्वेयर रहता है, प्लम बॉब रहता है। सो ऑल दीज आर द आयरन सब्सटेंस, स्टील के बने हुए थे, लोहे के है ये, और लोहा चुंबक को आकर्षित करता है, तो चुंबक की सुई इनके तरफ झुकाव दिखा सकती है। वो भला ही झुकाव भरा थोड़ा सा कम हो, कुछ मिनट में या कुछ सेकंड में हो, लेकिन ये फिनोमिना हो सकता है कंपास का इस्तेमाल करते समय। And therefore there is a chance of local attraction. So at a station we have to see that forward bearing and back bearing का डिफरेंस 180 होना चाहिए। तो सर्वे फील्ड में जब भी आप कोई भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, किसी ने आपको बोला कि एक सर्वे लाइन का आपको बेरिंग लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप उसका फोर बेरिंग भी लीजिए और आप उसका बैक बेरिंग भी लीजिए। यानी आपको क्या करना है? तो स्टेशन ए के ऊपर खड़े रह के बी को देखने का और फोर बेरिंग लेने का, फिर बी के ऊपर कंपास लेके जाने का और ए को देखने का, और फिर बैक बेरिंग लेने का। तो हर एक लाइन के लिए हमको फोर बेरिंग और बैक बेरिंग दोनों का ऑब्जर्वेशन लेना पड़ता है। सो इन दिस वे यू कैन चेक द इफेक्ट ऑफ लोकल अट्रैक्शन इज देयर और नॉट, एंड इफ देयर देन वी हैव टू कैलकुलेट दैट करेक्शन। सो हियर टू understand the effect of local attraction we will solve some problem based on the local attraction. So here the this solving this problem will get you understand how the local attraction can be eliminated or how the correction of local attraction is done. तो ये प्रॉब्लम एकदम इंपॉर्टेंट है, लोकल अट्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करने का, उसका कितना करेक्शन आने वाला है, और वो करेक्शन अप्लाई करके करेक्टेड बेरिंग कैसा निकालने का। वो हम लोग यहां देखने वाले हैं। सो हियर द फॉलोइंग आर द ऑब्जर्व्ड बेरिंग ऑफ द लाइन। ये हमने फील्ड में जाके ऑब्जर्वेशन लिया लाइन का, ऑफ द ट्रैवर्स ए बी सी डी ई ए, यानी हमारा ट्रैवर्स ए से शुरू हो गया, बी सी डी ई और ए पे वापस आ गया। सो क्लोज ट्रैवर्स दिया है हमारे पास में, with a compass in a place where local attraction was suspected, यानी शक है हमको कि लोकल अट्रैक्शन वहां पर हो सकता है। सो फाइंड द करेक्ट बेरिंग ऑफ द लाइन, तो लाइन के करेक्ट बेरिंग हमको यहां पर निकालना है। एंड व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, तो यहां पे ऑब्जर्वेशन दिया है लाइन ए बी, उसका फोर बेरिंग है 191 डिग्री 45 मिनट, और उसका बैक बेरिंग है
13 डिग्री 0 मिनट. फिर लाइन बी सी, फोर बेरिंग इज 39 डिग्री 30 मिनट and back bearing is 222 degree 30 minute. Then line CD, 22 degree 15 minute is the fore bearing and 200 degree 30 minute is the back bearing. Then line DE, 242 degree 45 minute is the fore bearing and 62 degree 45 minute is the back bearing. Then EA, आखिरी की साइड है हमारे यहाँ पे, इसका फोर बेरिंग दिया है 330 डिग्री 15 मिनट और इसका बैक बेरिंग दिया है 147 डिग्री 45 मिनट. तो यहाँ पे जो ट्रैवर्स की साइड है हमारी ए बी, बी सी, सी डी, डी और ई ए, हर एक लाइन के दो दो बेरिंग हमने गिने हैं. कौन से हमने फोर बेरिंग गिने सबके और हमने यहाँ पे बैक बेरिंग भी गिने. तो ये इसमें हमको यहाँ पे बोला है कि ये ऑब्जर्व बेरिंग है और ये ट्रैवर्स के इसके अंदर लोकल अट्रैक्शन आ सकता है या होगा. तो फाइंड द करेक्ट बेरिंग ऑफ द लाइन. तो दीज आर द ऑब्जर्व्ड बेरिंग. फील्ड में से ऑब्जर्वेशन करे कि बेरिंग है और हमको करेक्टेड बेरिंग निकालना है, करेक्ट बेरिंग निकालना है. सो हाउ दिस कैन बी डन? सो वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सो वी विल गेट अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट वी विल डू एग्जैक्टली? सो फर्स्ट वी विल राइट डाउन द सॉल्यूशन. सो इन द सॉल्यूशन सबसे पहला काम है हमारा कि लोकल अट्रैक्शन है कि नहीं है. तो हमको पहले ये पता करना पड़ेगा. तो हमारा लाइन ए बी का फोर बेरिंग बैक बेरिंग हमारे पास में दिया है. तो यहाँ पे आप देखो पहले कि मैं यहाँ पर ए बी लाइन के लिए फोर बेरिंग और बैक बेरिंग, तो आपको क्या करना है, सिंपल स्टेप्स क्या करना है, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस निकालो. सो व्हाट दैट डिफरेंस इज, तो मैं करता हूँ पहले 191 डिग्री 45 मिनट 191 डिग्री 45 मिनट माइनस करता हूँ 13 डिग्री. तो इसका डिफरेंस आ गया मेरा यहाँ पे 178 डिग्री 45 मिनट. सो आई हैव कैलकुलेटेड द डिफरेंस बिटवीन द फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग. सो आई विल राइट डाउन हियर डिफरेंस बिटवीन फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग. फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस कितना आ रहा है वो निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे. फिर लाइन बीसी के लिए, सो फॉर लाइन बीसी 39 डिग्री 30 मिनट माइनस 222 डिग्री 39 डिग्री 30 मिनट माइनस 222 डिग्री 30 मिनट. तो यहां पर आ गया है माइनस 183 डिग्री. तीसरा सीडी लाइन के लिए, सीडी लाइन के लिए डिफरेंस कितना है फोर बेरिंग बैक बेरिंग का, सो 22 डिग्री 15 मिनट माइनस 200 डिग्री 30 मिनट. तो ये डिफरेंस आ गया मेरा 178 डिग्री 15 मिनट माइनस आ गया ये 178 डिग्री 15 मिनट. फिर लाइन सीडी के बाद में डीई लाइन के लिए डिफरेंस कितना है फोर बेरिंग बैक बेरिंग का, सो 242 डिग्री 45 मिनट माइनस 62 डिग्री 45 मिनट. तो ये डिफरेंस आ गया मेरा यहाँ पे 242 डिग्री 45 मिनट माइनस 62 डिग्री 45 मिनट. तो ये डिफरेंस आ गया मेरा 180 डिग्री का. और लाइन डी के बाद में है लाइन ई ए. सो लाइन ई ए के अंदर है हमारा 330 डिग्री 15 मिनट माइनस 147 डिग्री 45 मिनट. तो यहाँ पे मेरा डिफरेंस आ गया 182 डिग्री 30 मिनट. तो इस प्रकार से मैंने फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का हर एक लाइन के लिए डिफरेंस मैंने यहाँ पर निकाल लिया. तो अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो सबके लिए डिफरेंस अलग अलग है, लेकिन जो लाइन डीई है, सो फॉर लाइन डीई द डिफरेंस बिटवीन फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग इज 180 डिग्री. इसका मतलब ये लाइन के अंदर कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है, दैट यू कैन आइडेंटिफाई. So here you can write down that from the calculation of difference between four bearing and back bearing, it is observed that the difference between four bearing and back bearing for line D is 180 degree. So you can write down that, so difference between four bearing and back bearing of line
DE is 180 डिग्री एग्जैक्ट। लाइन DE के लिए फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री एग्जैक्ट है। इसका मतलब क्या हो रहा है अभी, अब यहां पे देखो DE ये डिफरेंस 180 है। इसका मतलब जब D स्टेशन पे कंपास रखा और E को देखा तो हमको मिल गया फोर बेरिंग ऑफ DE पे। अब फोर बेरिंग ऑफ DE पे रखते समय हमारा कंपास कहां पे रखा था, हमने D पे रखा था। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, E पे जाएंगे और E से D के ऊपर देखेंगे तो हमारा बैक बेरिंग आएगा। तो मैंने क्या किया था यहाँ पे, बैक बेरिंग ऑफ DE लाइन के लिए जब मैंने लिखा था तो मेरा कंपास कहां पर था, E पे। सो D पे था मेरा कंपास और यहां पे कंपास था E पे। तो ऐसा यानी D पे कंपास रखने के बाद में फोर बेरिंग आया और E पे कंपास रखने के बाद में बैक बेरिंग आया और ये दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री आया। इसका मतलब ये हो गया कि स्टेशन D और E पे कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि कौन से स्टेशन के ऊपर लोकल अट्रैक्शन नहीं है। तो वो कहां से पता चलेगा, जहां पे 180 का डिफरेंस है तो D और E ये लाइन है हमारी, तो DE लाइन का मतलब है स्टेशन D एंड स्टेशन E दे आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको लिखना पड़ेगा। सो देयरफॉर स्टेशन D एंड स्टेशन E आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। तो ये दोनों भी स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, D और E। तो इसका मतलब D स्टेशन से जितने भी ऑब्जर्वेशन लिए आपने वहां पे लोकल अट्रैक्शन का करेक्शन 0 रहेगा और जो E स्टेशन से ऑब्जर्वेशन लिए वहां पर भी लोकल अट्रैक्शन का करेक्शन 0 रहेगा। सो दैट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ वी हैव टू रिमेंबर। सो नाउ इफ दिस इज फाइनलाइज, हमको पता चल गया कि D और E पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है, तो अब हम लोग इसमें का करेक्शन निकाल सकते हैं आगे का। सो हाउ दिस कैन बी डन, so I will first write down all these things. So we will so this we have completed. Now we will solve this. How this problem can be solved? So it is very simple that first of all you have to write down 1 2 3 4 5 lines are there. तो आपको हर एक लाइन का फोर बेरिंग बैक बेरिंग दिया है। तो मैं सबसे पहले यहां पर क्या लिखूंगा, सो आई विल टेक डाउन फर्स्ट लाइन इज ए बी। सो दिस इज लाइन। तो ए बी के बाद में उसको उल्टा करके क्या होने वाला है, ए बी का बी ए। सो राइट डाउन बी ए। सो दिस इज वन लाइन। फिर बी के बाद में दूसरी लाइन कौन सी है, बी सी। तो बी सी लिखने के बाद में इसके नीचे लिख दो सी बी। सो आई हैव टू लिटिल बिट छोटा लिखना पड़ेगा थोड़ा मुझे ये। सो वी विल राइट डाउन इट लिटिल बिट ले स्मॉल। सो लाइन, फिर पहले आएगा ए बी, फिर आएगा बी ए, फिर दूसरी लाइन कौन सी है हमारी, बी सी। तो बी सी के नीचे लिखना पड़ेगा सी बी, उसके बाद हम उल्टा करके लिखने का। फिर तीसरी लाइन हमें सी डी, तो सी डी के नीचे लिखने का डी सी। फिर डी ई है तो डी ई लिख के उसके नीचे लिखना पड़ेगा ई डी। फिर आखिरी की लाइन है ई ए, सो ई ए, इसके नीचे लिखना पड़ेगा ए ई। तो हमको जो लाइन है वो और उसके बाद में उसका नाम उल्टा करके बी ए, बी सी, सी बी, सी डी, डी सी, डी ई डी। सो इन द सीरियल ऑर्डर यू हैव टू राइट डाउन। अब जब हमने, इसका मतलब क्या है कि ए पे रख के बी को देखा तो फोर बेरिंग आएगा। तो फोर बेरिंग की वैल्यू हमको दी है 191 डिग्री 45 मिनट। सो यहाँ पे आ जाएगा 191 डिग्री 45 मिनट। अब इसी प्रकार से बी से ए को देखा तो क्या आएगा, बैक बेरिंग आएगा। तो बैक बेरिंग है 13 डिग्री का, सो वो आएगा यहाँ पर 13 डिग्री।
फिर BC का 4 बेरिंग है 39 डिग्री 30 मिनट। अब C से B को देखेंगे तो बैक बेरिंग हो जाएगा, तो बैक बेरिंग आ जाए 222 डिग्री 30 मिनट। फिर CD का 4 बेरिंग है 22 डिग्री 15 मिनट। और D से C को देखेंगे तो बैक बेरिंग हो जाएगा, तो D से C का आ जाएगा 200 डिग्री 30 मिनट। फिर DE का है 242 डिग्री 45 मिनट। और E से D को देखेंगे तो बैक बेरिंग हो जाएगा, तो वो आएगा 62 डिग्री 40 मिनट, 62 डिग्री 45 मिनट। फिर आएंगे हम लोग EA पे, तो EA पे आ जाएगा हमारा 330 डिग्री 15 मिनट। तो A से E को देखेंगे तो 147 डिग्री 45 मिनट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले AB, फिर एक लाइन छोड़ के BC, फिर एक लाइन छोड़ के CD, फिर एक लाइन छोड़ के D, फिर एक लाइन छोड़ के EA, ऐसे पांचों लाइन आ गए और उसको उल्टा करेंगे तो BA ये बैक बेरिंग हो जाएगा। फिर CB, BC के उल्टा CB 4 बेरिंग हो जाएगा, बैक बेरिंग हो जाएगा। तो 4 बेरिंग बैक बेरिंग, 4 बेरिंग बैक बेरिंग, 4 बेरिंग बैक बेरिंग, 4 बेरिंग बैक बेरिंग, 4 बेरिंग बैक बेरिंग। तो ऐसे पूरे बेरिंग हमको लिख देना है। तो ये जो है ये हमारे है ऑब्जर्व्ड बेरिंग, दीज आर द ऑब्जर्व्ड बेरिंग। अब ये ऑब्जर्व्ड बेरिंग यहां पे इसके अंदर हमारा करेक्शन है कि नहीं है ये हमको पहले पता करना पड़ेगा। सो नाउ हमारा करेक्शन निकालने के लिए हमको यहां से भी ये लाइन आ गई हमारी। अभी इसको हमको यहां पे करेक्शन निकालना है। यहां पे करेक्शन, तो करेक्शन निकालने के लिए हमको फिर से और करेक्शन अप्लाई करने के बाद में आपको निकलेगा करेक्टेड बेयरिंग, करेक्टेड बेयरिंग। तो करेक्टेड बेयरिंग आपको फिर से लगेगा यहां तक का। तो अब हमको इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ये टेबल बनाने के बाद में पहला टेबल बन गया आपका ए लाइन का, फिर ए बी को उल्टा करके बी सी, फिर बी सी को उल्टा करके सी बी, सी डी को उल्टा करके डी सी, ये लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे ए बी का 4 बेरिंग, ए बी का बैक बेरिंग, फिर बी सी का 4 बेरिंग, बी सी का बैक बेरिंग, ऐसा भर दिया आपने इसको। अब हमने यहाँ पे पहले देखा था कि स्टेशन डी एंड ई आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, तो डी पे लोकल अट्रैक्शन कितना रहेगा 0, ई पे लोकल अट्रैक्शन कितना रहेगा 0, इसका मतलब डी पे करेक्शन कितना रहेगा 0, ई पे करेक्शन कितना रहेगा 0। तो जो जो ऑब्जर्वेशन डी पॉइंट से या ई पॉइंट से लिए है वहां पे करेक्शन आपका 0 रहेगा। तो हम लोग एकदम देख सकते हैं यहां पर। अब यहां पे देखो कौन सी लाइन है, देखो ये डी सी लाइन है ना, तो डी से रीडिंग लिया हमने, तो डी से लिया रीडिंग, इसलिए यहां पर करेक्शन आएगा 0 डिग्री 0 मिनट, क्योंकि ऑब्जर्वेशन डी से लेके सी के तरफ लिया। वैसा यहां से डी के ई के तरफ लिया, डी ई, तो डी से लिया ई के तरफ, तो यहां पर भी 0 डिग्री 0 मिनट का करेक्शन आएगा। फिर ई से भी हमारा करेक्शन, ई पे भी लोकल अट्रैक्शन नहीं है, तो जो जो रीडिंग ई से लिया है वहां पे करेक्शन 0 रहेगा, तो ई डी का भी यहां पर 0 डिग्री 0 मिनट आएगा, और ई ए इसका भी 0 डिग्री 0 मिनट आएगा। तो जो जो लाइन मेरी डी और सी से शुरू हो रही थी यहां पे नाम, वहां पे चारों जगह पे मैंने 0 0 लिख दिया। अब देखो आप कि यदि डीसी के अंदर का बेरिंग दिया है 200 डिग्री 30 मिनट और उसमें करेक्शन है 0, तो करेक्टेड बेरिंग कितना रहेगा उतना ही रहेगा। तो हम लोग यहां से ये 200 डिग्री 30 मिनट यहां पे लिख देंगे, क्योंकि करेक्शन उतना ही है। फिर ये डी का भी बेरिंग उतना ही लिखना पड़ेगा, तो ये है 242 डिग्री 45 मिनट, ये भी इतना ही रहेगा। फिर ईडी का भी 0 डिग्री है, तो 62 डिग्री 45 मिनट, ये भी उतना ही रहेगा करेक्टेड बेरिंग। और ये 330 डिग्री 15 मिनट, ये भी इतना रहेगा। तो ये करेक्शन तो हो गए। अब आप यहां पे देखो, इतना तो आप कर सकते हो। पहले हमने डी और ई का
स्टेशन कौन सा है, करेक्टेड वाला देख लिया, वहाँ पे 180 का डिफरेंस है, तो डी और ई के सारे करेक्शन जीरो रहेंगे। सो डी के लिए 2 लाइन रहेगी, ई के लिए 2 लाइन रहेगी, वहाँ पे करेक्शन जीरो लिख दिए, तो उसके करेक्टेड बेरिंग भी उतने ही हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखो ई ए का बेरिंग है 330 डिग्री 15 मिनट, तो ई का बैक बेरिंग कितना आना चाहिए, इससे 180 का डिफरेंस। तो आप ये रीडिंग पर से 180 का डिफरेंस करके इसका ए का बैक बेरिंग निकाल सकते हो। तो हम लोग अभी यहाँ से करेंगे शुरू। 330 डिग्री 15 मिनट है, ये हमारा ई का बेरिंग, और इसका बैक बेरिंग निकालना है तो 180 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि बड़ी संख्या है 180 से। सो माइनस 180, तो ये आ गया 150 डिग्री 15 मिनट, यानी करेक्टेड रीडिंग हमारा 150 डिग्री 15 मिनट होना चाहिए। यानी फोर बेरिंग इतना है तो बैक बेरिंग इतना होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए का हमको गिवन इतना है 147 डिग्री 45 मिनट, तो 147 डिग्री 45 मिनट में कितना करेक्शन करना पड़ेगा तो इतना रीडिंग आएगा, तो वो हम निकाल सकते। तो 150 में से ये माइनस कर लो, सो माइनस 147 डिग्री 45 मिनट, तो ये आ गया 2 डिग्री 30 मिनट। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस 2 डिग्री 30 मिनट का करेक्शन आएगा, तब जाके मुझे 150.15 मिलने वाला है। तो 330 पे से 180 माइनस करके ये निकाला, और इसमें से ये माइनस करके ये निकाला। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ए में इतना करेक्शन है, तो ए स्टेशन के ऊपर इतना लोकल अट्रैक्शन है, तो ए स्टेशन से दूसरी लाइन हमारी ये भी है ए बी वाली, तो इतना ही करेक्शन ए बी पे रहेगा। तो सीधा सीधा यहाँ का उठा के यहाँ पे प्लस 2 डिग्री 30 मिनट यहाँ लिख दो, क्योंकि ए बी पे इतना करेक्शन है तो ए पे है तो ए बी पे भी रहेगा। तो इतना करेक्शन है तो करेक्टेड बेरिंग कितना आएगा, तो फिर 191 में ये ऐड करना पड़ेगा। सो प्लस 191 डिग्री 45 मिनट, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा 194 डिग्री 15 मिनट, 194 डिग्री 15 मिनट। तो ये करेक्टेड निकल गया बेरिंग। अब ये यदि ए बी का बेरिंग है, सी हियर ए बी का बेरिंग है, तो बी ए का क्या हो जाएगा, 180 के फर्क से ये निकालना पड़ेगा बी ए के लिए। तो इसमें 180 का फर्क कर दो, तो माइनस 180 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये हो गया 14 डिग्री 15 मिनट। और एक्चुअल में हमको कितना दिया है, 13 डिग्री दिया है, तो 13 डिग्री को करेक्ट करके इतना लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो माइनस 13 करके देख लो इसमें से। तो ये हो गया प्लस 1 डिग्री 15 मिनट, तो प्लस 1 डिग्री 15 मिनट का करेक्शन आएगा हमारा। यानी ये फोर बेरिंग पे से 180 का फर्क करके बैक बेरिंग लिखा, और ये इतना आना चाहिए और इतना दिया है तो करेक्शन निकाला। अब ये करेक्शन है स्टेशन बी पर का, बी ए लाइन के लिए करेक्शन है, तो उतना ही करेक्शन बी सी पर भी रहेगा, क्योंकि बी स्टेशन का करेक्शन है ये, तो बी सी पे भी उतना ही करेक्शन रहेगा। तो ये करेक्शन इतना का इतना यहाँ लिख दो, प्लस 1 डिग्री 15 मिनट, तो बी सी का करेक्शन भी इतना ही आएगा। अब ये करेक्शन है और ये गिवन है, तो करेक्टेड कितना आएगा निकाल लो। तो इसको हमको प्लस करना पड़ेगा 39 डिग्री 30 मिनट में, तो हमारा ये हो जाएगा 40 डिग्री 45 मिनट। तो 40 डिग्री 45 मिनट हमारा करेक्टेड बेरिंग हो गया बीसी का। अब ये करेक्टेड हो गया बीसी का, तो बीसी पर से सीबी निकालने के लिए फिर से 180 का फर्क लगेगा, तो इस पे से आप 180 का फर्क करके यहाँ पे निकाल सकते हो। तो अब ये वैल्यू 180 से छोटी है तो प्लस 180 कर दो इसके अंदर, तो ये होना चाहिए हमारा करेक्टेड वाला होना चाहिए 220 डिग्री 45 मिनट। तो ये आ गया करेक्टेड, यानी इतना है तो 180 का फर्क करके यहाँ पे आना चाहिए। अब ये यदि इतना आ गया 220 और दिया है 222, तो करेक्शन कितना निकलेगा, तो उसको माइनस कर लो। सो माइनस 222 डिग्री 30 मिनट, तो हमारा करेक्शन आएगा यहाँ पे माइनस 1 डिग्री 45 मिनट। तो यहाँ पर माइनस 1 डिग्री 45 मिनट करेंगे तो 222 में से माइनस करके 220 आएंगे बराबर। अब ये 1 डिग्री 45 मिनट का जो निगेटिव करेक्शन है ये है सी स्टेशन का, तो सी स्टेशन का लाइन सी डी भी है यहाँ पर, तो सी डी पे भी उतने करेक्शन रहेगा, तो ये वाला करेक्शन यहाँ लिख दो जैसा का वैसा। सो माइनस 1 डिग्री 45 मिनट, तो इतना करेक्शन है और इतना बेरिंग है, तो इसको करेक्टेड निकाल सकते। तो इसको प्लस 22 डिग्री
15 मिनट, तो ये हो गया मेरा 20 डिग्री 30 मिनट, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री 30 मिनट का। अब ये यदि आ गया आपका, तो आपको यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं आप कि ये लाइन है सी डी का बेरिंग इतना है, तो डी सी का कितना होगा, प्लस 180 ऐड कर दो, तो 180 ऐड करके देख लो आप इसके अंदर, तो ये आ गया 200 डिग्री 30 मिनट, 200 डिग्री 30 मिनट, और इतना ही हमको यहाँ पे दिया है। इसका मतलब आपने जो करेक्शन किए वो आपका प्रॉब्लम आपने बराबर सॉल्व किया। सो इस प्रकार से हमने हर स्टेशन का करेक्शन निकाला लोकल अट्रैक्शन के वजह से, और उसको अप्लाई करके करेक्टेड बेरिंग निकाले, तो ये आपका आंसर है फाइनल। सो दीज आर द करेक्टेड बेरिंग। करेक्टेड बेरिंग। तो जब भी आप फील्ड में इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन लेते हो, तो आपको पहले ऐसा टेबल बना के कहाँ कहाँ पर लोकल अट्रैक्शन जीरो है वो पहले पता करना पड़ता, और उसके हिसाब से फिर फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 मेंटेन करते चलना पड़ता, तो आप करेक्शन निकाल सकते। फिर ये करेक्शन दूसरे लाइन के अप्लाई करो, फिर करेक्टेड निकालो, फिर 180 का डिफरेंस करके बेरिंग निकालो, फिर इतना आने के लिए कितना करेक्शन निकाला वो निकालो, फिर ये करेक्शन फिर दूसरे लाइन पे लगेगा दूसरे स्टेशन पे, फिर ये निकाल के फिर बेरिंग निकालो, फिर 180 का फर्क करके आगे का बेरिंग निकालो, फिर आगे के बेरिंग पे से यहाँ का करेक्शन निकालो, फिर ये करेक्शन नीचे वाले लाइन पे लगाओ, तो फिर अगले लाइन का बेरिंग निकलेगा, फिर 180 का फर्क निकल के आगे का बेरिंग निकलेगा। सो इस प्रकार से आपको इस प्रॉब्लम में डायरेक्शन याद रखना, यहाँ से 180 का डिफरेंस करके नीचे का बेरिंग आता है, फिर नीचे का बेरिंग का करेक्शन आएगा तो करेक्शन यहाँ नीचे लिखना है, फिर करेक्शन पे से आगे का बेरिंग निकलेगा, फिर ये बेरिंग को नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो ऐसा करते करते आप पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सो दिस डायरेक्शन यू हैव टू रिमेंबर, यानी पहले बेरिंग, फिर यहाँ से ये मिला, फिर यहाँ से करेक्शन मिला, फिर करेक्शन से बेरिंग, फिर 180 से बेरिंग, फिर करेक्शन, फिर नीचे करेक्शन आ गया, फिर बेरिंग, फिर नीचे बेरिंग आ गया, फिर करेक्शन, फिर नीचे करेक्शन आ गया, फिर बेरिंग। सो लाइक वे दिस फ्लो you can follow and you can find out the corrected bearing of the survey line. So in this way you have to solve this problem which are based on the local attraction. So इस प्रकार से हम लोग local attraction के problem को solve कर सकते हैं. So we will solve again one another problem so that here the direct observations are given in reduced bearing format. So you will get it again clear that how this local attraction can be calculated and how the corrected bearing can be calculated. So here what we will do, following are the observational bearing of the line of the traverse A, B, C, D, E, A. यहाँ पे traverse है A, B, C, D, E, A with a compass in a place where local attraction was suspected, यानी वहाँ पर अपने को अंदाज लग रहा है कि local attraction है करके, तो corrected bearing हमको निकालना है, और ऑब्जर्वेशन ये हमारे पास दिए है। तो ए बी का फोर बेरिंग है साउथ 45 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, और बैक बेरिंग है नॉर्थ 45 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। फिर यहाँ पे बी सी का है साउथ 60 डिग्री ईस्ट, और बैक बेरिंग है साउथ 60 डिग्री 40 डिग्री वेस्ट। फिर सी डी का है साउथ 5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, और बैक बेरिंग है नॉर्थ 3 डिग्री 20 मिनट वेस्ट। डी ए का है नॉर्थ 83 डिग्री 30 मिनट वेस्ट एंड साउथ 85 डिग्री ईस्ट बैक बेरिंग है। तो ये ऑब्जर्वेशन हर एक लाइन के लिए, 4 लाइन के लिए फोर बेरिंग और उसके बैक बेरिंग ये हमने ऑब्जर्व लिए। तो अब हमको इसको फिर से करेक्टेड बेरिंग निकालना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, सो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द लाइन और द स्टेशन वेयर लोकल अट्रैक्शन इज जीरो। तो लोकल अट्रैक्शन जीरो कहाँ रहेगा, इसके लिए आपको पहले फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, करेक्ट। तो हमारा ये जो लाइन है ए बी के लिए फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस कितना आएगा, देखो आप यहाँ पे 40 डिग्री 30 है और यहाँ पे 45 डिग्री 30 है, यहाँ भी 45 डिग्री 30 है, मतलब यहाँ पर डिफरेंस कितना है 0 डिग्री का। फिर बी सी के लिए, क्योंकि हमारे ये बेरिंग रिड्यूस बेरिंग फॉर्मेट में दिया है, तो यहाँ पे डिफरेंस तुरंत निकाल सकते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर है साउथ 60 डिग्री 0 मिनट और यहाँ पर है नॉर्थ 60 डिग्री 40 मिनट, तो यहाँ पर 0 डिग्री का फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है प्लस 0 डिग्री 40 मिनट का। फिर लाइन सी डी के लिए 5 डिग्री 30 मिनट है और 3 डिग्री 20 मिनट है, यानी फर्क आ रहा है यहाँ पे कितना फर्क आ रहा है, फर्क आ रहा है हमारा
-1 डिग्री 40 मिनट का कुछ तो भी आएगा, 1 डिग्री 10 मिनट। देन यहाँ पर आएगा हमारा यहाँ पे 5 में से 2, यानी यहाँ पर 2 डिग्री 10 मिनट का आ रहा है यहाँ पे डिफरेंस। और डी ए के लिए करेंगे, सो डी ए के लिए 83 डिग्री 30 मिनट है और यहाँ पर 85 है, तो यहाँ पर भी 1 डिग्री 30 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब चारों लाइन में से लाइन ए बी के लिए फोर बेरिंग बैक बेरिंग का डिफरेंस कितना है, 0 बोलो या 180। 180 है एक्चुअली, 0 नहीं है, 180 है, क्योंकि यहाँ पे साउथ ईस्ट है और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट है। इसका मतलब एंगल बदल गया 180 से। सो एक्चुअली हियर द करेक्शन फॉर लोकल अट्रैक्शन, देर इज नो लोकल अट्रैक्शन, क्योंकि ए और बी के फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में डिफरेंस हमारा एग्जैक्ट 180 डिग्री का है, क्योंकि ये साउथ 45 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है और ये 180 से रिवर्स कर दिए तो नॉर्थ 45 डिग्री 30 मिनट वेस्ट आ गया। तो इस लाइन के लिए, यानी ये जो लाइन है लाइन ए बी के लिए, हमारा फोर बेरिंग बैक बेरिंग का डिफरेंस एग्जैक्टली 180 है। इसका मतलब स्टेशन ए एंड बी दे आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। सो यू कैन राइट डाउन दिस, सो एज difference between four bearing and back bearing of line AB is exact 180 degree, therefore इसमें कौन से स्टेशन आ गए, ए और बी। सो आप लिख सकते हो स्टेशन ए एंड बी आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हो गया कि स्टेशन ए और बी पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है। सो नाउ योर वर्क इज हाफ डन। सो हियर नाउ वी विल सॉल्व दिस। सो दैट वी नो दैट ए एंड बी पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है। तो अब हम लोग इसको करेक्टेड बेरिंग निकालेंगे। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट देन अगेन, तो हमको ये चारों लाइन के पहले फोर बेरिंग और बैक बेरिंग, फोर बेरिंग बैक बेरिंग, फोर बेरिंग बैक बेरिंग लिखना है। सो व्हाट वी विल डू अगेन, राइट डाउन हियर। सो फर्स्ट इज अवर लाइन में पहली लाइन आ जाएगी, पहली लाइन हमारी क्या है, ए बी, तो उसको उल्टा करके दूसरी लाइन आ जाएगी बी ए। देन सेकंड लाइन इज बी सी, तो बी सी को उल्टा करके लिखना पड़ेगा सी बी। फिर थर्ड लाइन है सी डी, तो सी डी, इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा डी सी। फिर चौथी लाइन है डी ए, तो डी ए और उसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा ए डी। तो ये इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब यदि ये लिख दिया आपने, तो आप यहाँ पर ये भी ध्यान में रख सकते हो कि ये जो दो रीडिंग है हमारे बी ए बी सी, ये स्टेशन बी पे से लिए है। ये जो दो स्टेशन है ये सी स्टेशन से लिए रीडिंग है। ये जो दो है ये डी से लिए हुए है, और ये जो स्टेशन का है ये ए से लिया है, और ये भी रीडिंग ए स्टेशन से लिया है। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टेशन। तो हम लोग दो दो लाइन का एक एक स्टेशन यहाँ पे मार्क भी कर सकते हैं। सो दिस इज वन स्टेशन, दिस इज अनदर, दिस इज। अब ये हो गए हमारी लाइन। अब इनके सबके बियरिंग भी तो दिए है हमको यहाँ पर। सो बियरिंग हम लोग यहाँ पर लिख देंगे पहले। सो पहले लाइन का है फोर बेरिंग, साउथ 45 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, साउथ 45 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। और बी ए का करेंगे तो ये बैक बेरिंग हो जाएगा। सो बी ए का बैक बेरिंग दिया है हमको नॉर्थ 45 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। फिर बी सी का दिया है 60 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, साउथ 60 डिग्री 0 मिनट ईस्ट। और सी बी का दिया है नॉर्थ 60 डिग्री 40 मिनट वेस्ट। फिर सी डी का दिया है 5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, सो साउथ 5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट।
और DC का उल्टा हो जाएगा बैक बेरिंग, सो दैट इज गिवन एज नॉर्थ 3 डिग्री 20 मिनट वेस्ट। फिर DA का दिया है नॉर्थ 83 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, और उसका बैक बेरिंग दिया है उल्टा 85 डिग्री ईस्ट वाला, यानी साउथ 85 डिग्री 0 मिनट ईस्ट। तो ये हमने लिख दिया सबके फोर बेरिंग और बैक बेरिंग। सो दीज आर द ऑब्जर्व्ड बेरिंग, ऑब्जर्व्ड बेरिंग। अब इसमें का हमको निकालना पड़ेगा करेक्शन। और फिर निकालना पड़ेगा करेक्टेड बेरिंग। तो अब हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि हमको पता है कि स्टेशन ए और बी आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। तो ए से कौन सा रीडिंग लिया आपने, ए से ए बी का रीडिंग लिया, तो यहां पे 0 डिग्री 0 मिनट का करेक्शन आ जाएगा, करेक्शन। वैसा ए से और कौन सा रीडिंग लिया, एडी वाला, तो एडी पर भी 0 डिग्री 0 मिनट का करेक्शन आ जाएगा। और दूसरा स्टेशन कौन सा है, बी, सो बी से भी रीडिंग, बी से लोकल अट्रैक्शन नहीं है, तो बी से 2 रीडिंग है हमारे, BA और BC वाले, तो यहां पर भी 0 डिग्री 0 मिनट 0 डिग्री 0 मिनट दोनों जगह पे। और बस बी से 2 रीडिंग है उसका करेक्शन 0 कर दिया, ए से 2 रीडिंग है उसका भी करेक्शन 0 कर दिया, क्योंकि स्टेशन ए एंड बी आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, तो स्टेशन ए बी पे करेक्शन 0 रहेगा। तो यदि यहां पर 0 है तो करेक्टेड बेरिंग निकाल सकते हैं हम लोग, करेक्टेड बेरिंग। तो ये 0 है तो इतना ही रहेगा, तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं साउथ 45 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसमें से 0 करेंगे तो इतना ही आएगा, तो यहाँ पे सेम आ जाएगा नॉर्थ 45 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। फिर यहाँ पर भी 0 है तो सेम आ जाएगा साउथ 60 डिग्री 0 मिनट ईस्ट। और यहाँ पर भी 0 है तो यहाँ पर भी साउथ 85 डिग्री 0 मिनट ईस्ट आ जाएगा। अब ये निकाल लिया हमने करेक्टेड, क्योंकि 0 है तो उतने आएगा करेक्टेड बेरिंग। अब आप यहाँ पे देखिए BC ये लाइन का फोर बेरिंग है 60 डिग्री 0 मिनट ईस्ट। तो हमने इसके पहले भी देखा था कि साउथ ईस्ट है, इसका फोर बेरिंग का बैक बेरिंग करना है तो सिर्फ साउथ को नॉर्थ और ईस्ट को वेस्ट करना पड़ेगा, एंगल तो उतने ही रहने वाला है। तो हम लोग इस पे से तुरंत बैक बेरिंग निकाल सकते। तो बैक बेरिंग में आपको सिर्फ क्या करना है, साउथ का नॉर्थ करना है 60 डिग्री और 0 मिनट और ईस्ट का वेस्ट करना है। तो ये हमने कैलकुलेट किया, लेकिन यहां पर क्या है, इतना दिया, इतना है हमको 60 डिग्री 40 मिनट वेस्ट दिया है। तो इसका मतलब यहां पे इतना आने के लिए 0 डिग्री 40 मिनट इसको माइनस करना पड़ेगा। सो माइनस 0 डिग्री 40 मिनट का करेक्शन आएगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे ये करेक्शन निकाल लिया। फिर अब ये करेक्शन C पर है तो C पे उतना दूसरा ऑब्जर्वेशन नहीं है, नीचे वाला है, तो इतने करेक्शन नीचे भी रहेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग माइनस 0 डिग्री 40 मिनट का करेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि इतना करेक्शन C पे है, C स्टेशन पे, तो इतना करेक्शन यहाँ पर भी रहेगा CD के लिए। तो इतना करेक्शन आ गया तो इसको अप्लाई इस पे करो, तो अब यहाँ पे कैलकुलेट निकाल सकते हैं आप। सो 5 डिग्री 30 मिनट माइनस 0 डिग्री 40 मिनट, तो ये निकल गया हमारा 4 डिग्री 50 मिनट। तो ये हो जाएगा यहाँ पर साउथ 4 डिग्री 50 मिनट ईस्ट करेक्टेड। इसमें से ये माइनस करके ये आ गया। अब ये 4 डिग्री 50 मिनट से आ गया, तो इसको फिर से हम लोग यहाँ से इसका निकाल सकते हैं, क्योंकि ये है हमारा CD का, तो CD का बेरिंग इतना है, तो बैक बेरिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके 180 का फर्क। तो यहाँ पे साउथ का नॉर्थ करना पड़ेगा, एंगल 4 डिग्री 50 मिनट का ही रहेगा, और ईस्ट को वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये बैक बेरिंग हो गया। लेकिन ये बैक बेरिंग दिया इतना नहीं है, नॉर्थ 40 डिग्री 50 मिनट के बजाय यहाँ पे नॉर्थ 3 डिग्री 20 मिनट दिया है। इसका मतलब करेक्शन जरूरी है। तो कितना करेक्शन निकालेगा, तो वो निकाल लो आप। इसमें से माइनस करेंगे 3 डिग्री 20 मिनट, तो प्लस 1 डिग्री 30 मिनट का करेक्शन आ जाएगा। सो प्लस 1 डिग्री 30 मिनट का करेक्शन लगाओ यहाँ पे,
तब जाके आपका ये निकलेगा। सो दिस वी हैव नो कैलकुलेटेड। तो मैंने क्या किया, ये करेक्शन यहाँ निकाला था, फिर यहाँ से ये बेयरिंग निकाला, फिर यहाँ से ये वाला करेक्शन निकाला। अब ये करेक्शन मुझे फिर से नीचे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि ये करेक्शन है डीसी का, तो डीए पर भी उतने करेक्शन रहेगा। सो क्योंकि डी स्टेशन से शुरू है वो है लाइन, तो यहाँ पर भी +1 डिग्री 30 मिनट का करेक्शन मैं यहाँ लिख दूंगा। अब ये करेक्शन इसको लगा के यहाँ का निकाल लो, तो 83 डिग्री 30 मिनट प्लस 1 डिग्री 30 मिनट, तो ये हो गया 85 डिग्री पूरा। तो यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ 85 डिग्री वेस्ट। और आप देख सकते हैं कि अब इसको यदि आप 180 के तो नॉर्थ का साउथ हो गया, वेस्ट का ईस्ट हो गया, और 85 डिग्री का 85 डिग्री रह गया। इसका मतलब आपने सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम बराबर है। तो यदि आपके 4 बेरिंग बैक बेरिंग क्वाड्रेटल सिस्टम में दिए हैं तो भी आप करेक्शन निकाल सकते हो, और उसके साथ में आप करेक्टेड बेरिंग निकाल सकते हो। अब ये आपको एक्चुअल ये वाले बेरिंग का इस्तेमाल करके, करेक्टेड बेरिंग का इस्तेमाल करके आपको ट्रैवर्स बनाना चाहिए। जो भी आप नक्शा निकालोगे उसके अंदर लाइन ए बी का बेरिंग आपको इतना लेना पड़ेगा, BC का इतना लेना पड़ेगा, CD का इतना लेना पड़ेगा, तब जाके आपका ट्रैवर्स जो है वो बराबर क्लोज बनेगा। सो दिस वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन लोकल अट्रैक्शन. So you can have another problem also on this, but two problem we have solved. So similarly this type of problems are there, you can solve this. So in this lesson now we have seen how the corrected bearing are calculated by applying the correction for local attraction, and then we have also seen the phenomena of local attraction, and we have also solved the problem on the local attraction. So more problem you can try, and now in the next lesson again we will go for the important concept that regarding the included angle in the traverse. So we will proceed for the chain and compass survey, how we can prepare the map in the next lesson. Till then, thank you and goodbye for watching this lecture. Thank you.